calculation of probability of error of any general communication system. Today we start with the calculation of probability of error for M-Array PAM, right? So today we will do the calculation of probability of error for M-Array PAM, pulse amplitude modulation. And we know what is the meaning of M-Array PAM. So we have already drawn the constellation diagram of M-Array PAM also. So for example, if we draw the constellation for M-Array PAM and the value of M is equal to 8, so it will become 8 Array PAM. So for example, it is 0. Then we know that here we can have d by 2 minus d by 2, right? So here we are considering, you can write it down clearly. Here we are considering, assume we are talking about M-Array PAM where M is equal to 8. Then for M is equal to 8, we can draw the constellation like 0. Then the first point can be A, the second point can be 3A, the next point can be 5A, and then next point can be 7A. Here we can have minus A, we can have minus 3A, then we can have minus 5A, then we can have minus 7, right? So it can be the constellation of 8 Array PAM, and here we are considering d by 2 is equal to A because A थोड़ा सिंपल रहेगा हमारे लिए. हम लोग लेवल्स को A के फॉर्म में देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ उसको. d by 2 को मैं A लिख ले रहा हूँ. सो अगर d by 2 A है तो दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना होता है? 2A, राइट? सो आप देखिए कांस्टेंट 2A का गैप मेंटेन किया हुआ है. A, 3A, 5A, 7A, A और माइनस A के बीच में भी जो गैप होगा वो कितने का होगा? 2A. और फिर यहाँ भी माइनस A, 3A, माइनस 3A, माइनस 5A, माइनस 7A, पूरा 2A का कांस्टेंट गैप को मेंटेन करते हुए we can draw the constellation diagram, right? Now because generally तो हमारे पास M-Array PAM होगा, ठीक है? लेकिन हमने यहाँ एक स्पेसिफिक एग्जांपल से शुरुआत की है, वहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं M is equal to 8. आप इसको जनरलाइज कर लेंगे हम लोग इसको आगे डिस्कशन में, जहाँ पर 8 की जगह हम वापस M ही ले लेंगे, ठीक है? बट समझने के लिए हम लोगों ने भी एक पैम बना लिया है विच इज 8 Array PAM, राइट? और अगर आप फॉर्मूला याद करें जो एवरेज एनर्जी का हम लोगों ने निकाला था, तो वो निकाला था, आपको याद हो, d स्क्वायर बाई 12 m स्क्वायर माइनस 1, अगर आपको याद हो तो, राइट? दिस वाज द एवरेज सिंपल एनर्जी इन पैम. सो एट द प्लेस ऑफ d यू कैन पुट 2a, राइट? एंड इफ यू आर पुटिंग 2a, so it will become 4a square upon 12. The symbol energy will a square. The symbol energy को a के term square minus 1, which is same as d square by 12 m square minus 1, right? So इस वाले डेरिवेशन में हम लोग अगर सिंबल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ES की वैल्यू a square by 3 m square minus 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा? Now, if we want to do the calculation of probability of error, what we have to assume? We have to assume that we are receiving the PAM symbol, and now we have to decide that either the transmitted symbol was A, 3A, 5A, 7A, or whatever, right? For example, if we talk about the receiver, then either I will receive the symbol A, or we will receive the symbol 3A,
or we receive the symbol 5a, and we have to decide that either I am receiving the right symbol or there is an error. So वही पिछला वाला concept आ जाएगा कि either I am receiving a or I am receiving 3a. So ये मैं कैसे decide करूंगा कि मुझे कौन सा symbol receive होना है, ठीक है? तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इसके लिए काम कर सकता हूँ कि जो -a और a के ठीक बीच में क्या आएगा, 0. मान लीजिए ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट हो गया, और a और 3a के ठीक बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, 2a, राइट? ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट हो गया. ये थ्रेशोल्ड रीजंस मैंने ड्रॉ कर लिए एक सिंबल के लिए. सिंबल है a, राइट? मुझे सिंबल रिसीव हुआ है a. अब मैं इस पर डिसाइड करने वाला हूँ, जो कुछ भी मुझे डिसाइड करना है, ठीक है? तो मैंने इसका एक जोन बना लिया. वो जोन है 0 से लेकर 2a तक, राइट? अगर जो भी रिसीव्ड सिग्नल एनर्जी है, जो भी वैल्यू है, वो इस जोन में आते हैं, तो मैं बोलूंगा डिकोडेड सिंबल क्या होना चाहिए, कैपिटल ए होना चाहिए, ठीक है? डिकोडेड सिंबल क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए. अगर इस रीजन में नहीं आके इस रीजन में आता है तो सिंबल 3a हो सकता है, इस रीजन में आता है तो सिंबल -a हो सकता है. दिस इज कॉल्ड डिटेक्शन रूल. क्या बोलते हैं उसको, डिटेक्शन रूल. और इस डिटेक्शन रूल या डिसीजन रूल को हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिसीजन रूल. सो राइट डाउन, सो लिख लेंगे इसको, हम लोग लिख लेंगे, राइट डाउन. In PAM receiver, to maximize the SNR, in PAM receiver to maximize the SNR, we use matched filter receiver. We use matched filter receiver. Right? Now the received signal can be simply written as RT is equal to A naught EP plus n tilde. A naught EP plus n tilde. राइट? सर एक मिनट दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए एक्सप्रेशन कैसे है? अभी लो बेटा, एक सेकंड. Received signal can be written as A naught EP plus n tilde. टिल्डा का साइन ऐसे डेल्टा की तरह बना है, टिल्डा, ठीक है? रिसीव्ड सिग्नल क्या होगा, रिसीव्ड सिग्नल होगा ट्रांसमिटेड पल्स प्लस नॉइस. अब ये पैम है, तो पैम में क्या ट्रांसमिट होते हैं, पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं. जो पल्स आप ले रहे हो वो पल्स क्या होगी, पीटी होगी. उस पीटी पल्स की कुछ एनर्जी होगी, उसको मैंने ईपी मान लिया है, ठीक है? उस पल्स की एनर्जी को मैंने क्या मान लिया है, ईपी. ईपी इज द एनर्जी ऑफ पल्स, पीटी. और उस पल्स का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड मैंने क्या मान लिया है, ए नॉट, राइट? सो पल्स इनटू मैग्नीट्यूड, ठीक है? अब जो पल्स मैंने यहाँ ली है ए नॉट ईपी, इसमें क्या जुड़ जाएगा, नॉइस. जब चैनल से चल के आएगी तो क्या जुड़ जाएगा इसमें, नॉइस. तो ये नॉइस प्लस सिग्नल इज इक्वल टू द रिसीव्ड सिग्नल. ये मुझे रिसीव होगा एट द साइड ऑफ रिसीवर, राइट? सो आप लिख सकते हो उसको that we choose pulse PT such that we choose pulse PT
और अच्छा से लिख लीजिए, चूज पल्स पीटी फॉर पैम ट्रांसमिशन, फॉर पैम ट्रांसमिशन such that the energy of the pulse EP is unity. So EP is equal to 1. ये अजम्पशन ले लिया मैंने कि जो पल्स पैम की मैं चुन रहा हूँ, पल्स के लिए जो पैम मैं जो पैम की पल्स में चुन रहा हूँ, इस पल्स की एनर्जी यूनिटी होनी चाहिए। ये मैं इस डिस्कशन में ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे जो डिसाइड करना है वो ए नॉट पे डिसाइड करना है, बिकॉज ए नॉट की वैल्यू होगी ए 3A 5A 7A, मुझे ए नॉट पे डिसाइड करना है। तो पल्स की एनर्जी मेरे लिए यहाँ डिसीजन में कोई रोल नहीं प्ले करेगी। सो मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए क्या किया, ईपी को यूनिटी मान लिया। सो जो भी पल्स मैं चुनूं पीटी, वो यूनिट एनर्जी पल्स होनी चाहिए, ठीक है। अब वो पल्स कोई भी हो सकती है, ठीक है, इस पर हमारा यहाँ कोई डिस्कशन नहीं है। वो पल्स कोई भी हो सकती है, बट वो पल्स यूनिट एनर्जी की होनी चाहिए। अगर वो पल्स यूनिट एनर्जी की होगी तो रिसीव्ड सिग्नल को मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा। रिसीव्ड सिग्नल कैन बी सिंपली रिटन एज RT इज इक्वल टू A नॉट प्लस N डेल्टा। A नॉट प्लस N डेल्टा, राइट। फिर से सुन लेते हैं, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग एमरी पैम के प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया साहब, पैम जो होता है उसमें हम लोग पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं, और पल्स के भी एम्पलीट्यूड डिफरेंट होते रहते हैं। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जो पल्स मुझे ट्रांसमिट करनी है उसकी एनर्जी यूनिटी होनी चाहिए, ये मैंने पहला अजम्पशन ले लिया। और इसके बाद जो इसका एम्पलीट्यूड है वो ए नॉट है, और ए नॉट हो सकता है A 3A 5A 7A। तो आप यहाँ पर जो 8 एरी पैम की बात कर रहे हैं, इसके लिए ए नॉट हो सकता है, ए नॉट बिलोंग्स टू प्लस माइनस A प्लस माइनस 3A प्लस माइनस 5A प्लस माइनस 7A, right? And if we talk about emery PAM, then it can go from plus minus A plus minus 3A to M level, right? सर RT इज इक्वल टू A नॉट EP प्लस N टिल्डा सर लिखा है, लेकिन सर ये A नॉट EP की जगह सर सिंगल डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, पूरी सिंगल की वैल्यू है। आप RT इज इक्वल टू PT प्लस N टिल्डा भी लिख सकते थे। PT का मतलब हो गया, PT कोई पल्स शेप होगी तो उस पल्स शेप में उसका एम्पलीट्यूड भी होगा और उस पल्स की एनर्जी भी होगी, ठीक है। अब चूंकि मैं इसको एक सैंपल पॉइंट पे ले रहा हूँ, जैसे कैपिटल T आप देख रहे हो, कैपिटल T का मतलब क्या हुआ, आफ्टर सैम्पलिंग है ये। आपको याद, जब हम लोगों ने पिछली बार जनरल रिसीवर बनाया था तो उसमें एक स्विच लगाया था और सैम्पलिंग कर रहे थे, और सैम्पलिंग के बाद थ्रेशोल्ड डिटेक्शन लगा रहे थे, ठीक है। तो वो तो पैम में भी होगा। तो पैम के भी जो सिंबल आ रहे हैं इनको मैं सैंपल कर रहा हूँ, तो सैंपल सिग्नल पर जो पल्स होगी उसकी एनर्जी को ही लेंगे, क्योंकि पल्स PT जो है, PT का मतलब होता है इट इज अ जनरल पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द टाइम पीरियड, सम टाइम, राइट। बट पल्स T कैपिटल T का मतलब होता है एक वैल्यू, किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक पल्स की वैल्यू। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर पल्स लेनी है तो उसकी एनर्जी ही ली जाएगी, ठीक है। और इस एनर्जी को मैंने क्या मान लिया, यूनिटी मान लिया, ठीक है। सो मैंने क्या लिखा, ये कैपिटल RT यानी रिसीव्ड सिग्नल हो सकता है A नॉट EP प्लस N टिल्डा। अगर मैं पल्स PT को ऐसे चुनता हूँ कि उसकी एनर्जी यूनिटी है, तो EP की वैल्यू मैं 1 मान सकता हूँ। तो कैपिटल RT कैन बी रिटन एज A नॉट प्लस N टिल्डा, A नॉट प्लस N टिल्डा, राइट। So this is my received PAM symbol. This is the received PAM symbol. ये मुझे मिलेगा रिसीवर साइड पे। RT is equal to A naught plus N tilde. And what is N tilde? N tilde is, tilde क्यों लगाया है इसके ऊपर? Because noise लिख सकते थे simple, but यहाँ पर N tilde का मतलब है it is a Gaussian noise, right? So N tilde is a Gaussian noise, इसको लिख लेंगे, a Gaussian distributed noise. Gaussian distributed noise, right? अच्छा, इसको Gaussian distributed noise को कभी-कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, N tilde can be equal to calligraphic N mean comma variance,
राइट, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। सो नॉइज का सिंबल अगर ऐसे बना हो, नॉइज कैलीग्राफिक एन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, म्यू इज द मीन, सिग्मा स्क्वायर इज अ वेरिएंस, और ये वेरिएंस जो है वो पावर भी दिखाता है, ठीक है, वेरिएंस जो है वो पावर को भी शो करता है। सो एन टिल्डा इज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड नॉइज हैविंग मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर हम जो नॉइज ले रहे हैं इट इज अ जीरो मीन एंड व्हाइट नॉइज, राइट, इट इज अ जीरो मीन एंड वेरिएंस इज ईटा नॉट बाय 2, जो या एन नॉट बाय 2 जो हम लोगों ने कल देखा था। सो इट इज अ बेसिकली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाइट नॉइज। सो इट इज हैविंग एन टिल्डा इज zero mean and the power is n naught by, variance is n naught by, right? So ये वाली noise हम यहाँ discussion में assume करेंगे। So RT is equal to a naught plus n tilde, where n tilde is a Gaussian distributed white noise having zero mean and the power is n naught by 2 या variance is n naught by 2, right? ग्राफिकली मैं बता दूं आपको कि मीनिंग क्या होता है इसका गॉसियन नॉइज का। फिर से एक बार रिपीट करता हूं आपके सामने, ये गॉसियन नॉइज सिंबल होता है, ये गॉसियन नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसमें ये जो वैल्यू होती है इसको लोग मीन बोलते हैं, म्यू, ये मीन है, ये म्यू 0 हो सकता है या म्यू की कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ये मीन होता है। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो ये वाला, इसका जो फैलाव होता है ना, ये सिग्मा स्क्वायर, ये जो बेल टाइप शेप है ना, बेल टाइप शेप का जो ये जो फैलाव है, दिस इज बेसिकली ग्राफिकली सिग्मा स्क्वायर। सो आप देखो ना बहुत सारे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड सिग्नल हो सकते हैं व्हिच इज हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिग्मा स्क्वायर। फॉर एग्जांपल यू कैन हैव अ नॉइज सिग्नल व्हिच इज हैविंग द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, राइट। सो यहाँ क्या है, म्यू तो कांस्टेंट है, यानी म्यू दोनों का सेम है, मीन दोनों का 0 है अगर ये म्यू की वैल्यू 0 है, बट सिग्मा स्क्वायर दोनों का अलग अलग है, इसका सिग्मा स्क्वायर ये हो गया, राइट। सिमिलरली एक ऐसा नॉइज भी हो सकता है जिसका सिग्मा स्क्वायर, दिस इज आल्सो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड सिग्नल, इसका सिग्मा स्क्वायर कम है, ये सिग्मा स्क्वायर हो गया, राइट। सो यू कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिग्मा स्क्वायर एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यू, राइट। म्यू इज मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस, और इसको हम सिग्नल की पावर से भी रिलेट करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जी बेटा सर एक चीज पूछनी थी कि जैसे जो ए नॉट है वो कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, और जो एन डेल्टा है जो आप बता रहे हैं ये फंक्शन होगा, तो टाइम का डिपेंडेंट फंक्शन होगा, तो सर फंक्शन को एक कांस्टेंट वैल्यू में ऐड करेंगे या फिर उसका नॉइस का एम्पलीट्यूड में ऐड करेंगे? एक्चुअली क्या है बेटा, ये जो एन टिल्डा है ना, ये एक सैंपल है, ठीक है। आप ध्यान दें, जो आर लिखा हुआ है, ये आर कैपिटल टी लिखा है, कैपिटल मींस एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, ये वैल्यू है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक कि ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी मतलब ये फंक्शन नहीं है, आर टी इज नॉट अ फंक्शन। सो आर टी खुद में एक वैल्यू है, वो वैल्यू मुझे रिसीव हुई किसी पर्टिकुलर टाइम पर, मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्टडी कर रहा हूँ पूरे चीज को, ठीक है। सो ए नॉट प्लस एन टिल्डा इज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन, लेकिन ये एक सैंपल है, नॉइज का एक सैंपल है, ठीक है। तो ये सैंपल को आप जोड़ोगे घटाओगे, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड नॉइज जो है, जो नॉइज आपको मिली हुई है, इसका एक सैंपल लिया है आपने, वो सैंपल को ए नॉट में जोड़ेंगे या घटाएंगे, मतलब वो सैंपल ए नॉट में जोड़ेगा या घटेगा, ठीक है। ये फंक्शन नहीं जोड़ घट रहा है इसमें, यानी कि सर कि एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी पे जो एन डेल्टा है उसकी भी कांस्टेंट वैल्यू ही, हाँ। एनीवे, सो ये हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, क्योंकि मुझे अभी पैम सिग्नल को एनालिसिस करना है। तो प्लेटफॉर्म में मैंने सबसे पहले समझा कि साहब पैम सिग्नल वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो पैम सिग्नल का मतलब होता है एक पल्स, और उसमें कुछ नॉइज आ जाएगी, और उस पल्स का कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा। तो पीटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने रिप्रेजेंट किया पीटी को, ए नॉट कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, एक पल्स होगी मेरी। तो कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी जो पल्स है, इसकी जो एनर्जी है ये क्या है, यूनिटी। सो इसको मैं यूनिट एनर्जी पल्स जब सैंपल करूंगा मैं इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तब मैं लिख दूंगा आर टी, आई एम रिसीविंग आर टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस एन टिल्डा। नॉइज का जो इफेक्ट है
वो एम्पलीट्यूड पे ही होना है। तो मैं सिग्नल के फंक्शन से मुझे क्या करना है, उसके एनर्जी का मैं देखूंगा क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो एनर्जी यूनिटी है तो सिग्नल का यानी पल्स का कोई रोल नहीं रहा। अब पल्स के एम्पलीट्यूड से मुझे मतलब है, वो एम्पलीट्यूड मुझे क्या मिला, वो ए नॉट मुझे क्या मिला। तो ए नॉट में जो नॉइज जुड़ी है वो मुझे देखना पड़ेगा, ये नॉइज ने ए नॉट को डिस्टर्ब किया या नहीं किया। तो उसके बेसिस पर मैं एरर को डिसाइड करूंगा। तो मैंने कहा साहब मैं सिंपल एक पर्टिकुलर टाइम कैपिटल टी पर आर टी की वैल्यू लिख सकता हूँ ए नॉट ई पी प्लस एन टिल्डा, वेयर ई पी इज अ यूनिट एनर्जी पल्स, सो आर टी कैन बी इक्वल टू ए नॉट प्लस एन टिल्डा। और एन टिल्डा जो है इट इज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाइट नॉइज, so it can have a zero mean and n eta naught by 2 या n naught by 2 पावर या वेरिएंस, राइट। ये हमने अभी तक डिसाइड कर लिया है। अब अगर मैं वापस आता हूँ, ये रिसीव सिग्नल मुझे मिलेगा, ठीक है, ए नॉट प्लस एन टिल्डा मुझे मिला। अब मुझे देखना है कि एरर होगी या नहीं होगी, या कौन सी कंडीशंस एरर की होती हैं, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस जो हम लोगों ने कॉन्स्टलेशन पढ़ा था उस कॉन्स्टलेशन को एक बार स्टडी करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये कोई पैम सिंबल है, ये बीच में जीरो लेवल है, ये है ए, ये है अगला पॉइंट 3a, ये है -a और ये है अगला पॉइंट -3a, राइट। मुझे किसी एक सिंबल पर डिसाइड करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि साहब -a और a इसके ठीक बीच का एक लेवल ले लेता हूं मैं विच इज जीरो, और a और 3a के ठीक बीच का एक लेवल ले लेता हूं विच इज 2a, राइट। अब अगर मेरा कैपिटल आर टी इस जोन में आ रहा है, मेरे पास कैपिटल आर टी इस जोन में है फ्रॉम 0 to 2a, राइट। कैपिटल आर टी है, कैपिटल आर टी है फ्रॉम 0 to 2a। तो डिटेक्टेड सिंबल क्या होना चाहिए, कैपिटल ए होना चाहिए। ये है डिसीजन रूल। ये क्या है, डिसीजन रूल। किस बेसिस पर मैं डिसाइड कर रहा हूं कि डिकोडेड सिंबल कैपिटल ए होगा या कैपिटल 3a होगा। तो मैंने डिसाइड ये किया कि -a और a के बीच का एक गैप सेंटर पॉइंट ले लिया 0, और a और 3a के बीच का एक सेंटर पॉइंट ले लिया 2a, ठीक। फिर बोला 0 से 2a के बीच में अगर एनर्जी आ रही है, रिसीव सिग्नल आ रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा ये सिग्नल है a, कैपिटल A। और इस डिसीजन रूल को हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिसीजन रूल। नियरेस्ट नेबर डिसीजन रूल का मतलब है जो पड़ोसी हैं उनसे देख लिया कि भाई ए का पड़ोसी कौन कौन, ए का पड़ोसी है 3a इधर और ए का पड़ोसी -a उधर है। तो ए बोला कि साहब 3a से मिड दूरी तक और -a से मिड दूरी तक ये एरिया मेरा है, इसके बीच में 0 से 2a के बीच में कोई एनर्जी अगर आती है, रिसीव सिग्नल आता है, तो वो ए होगा। अब इसके बाद अगर आती है तो फिर नियरेस्ट नेबर डिसीजन रूल लग जाएगा, ठीक है। 3a वाला बोलेगा साहब 2a से लेकर और 4a तक, क्योंकि अगला सिंबल क्या होगा, 5a होगा। तो 3a और 5a के बीच का कौन सा लेवल होगा, 4a। तो बोलेगा अगर आर टी यहाँ आता है तो फिर 3a डिकोडेड सिंबल होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ये सारी की सारी सिमेट्रिसिटी से मैं इस तरफ भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा कि एमरी पैम को मैं दो केस में स्टडी करूंगा। एक केस होगा जिसमें अंदर के सारे पॉइंट्स होंगे, अंदर मतलब हो गए वो सारे कॉन्स्टलेशन जो जिनके की दोनों तरफ पड़ोसी मौजूद है, ठीक है। जैसे ए है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए के दोनों तरफ पड़ोसी हैं, एक तरफ -a है, एक तरफ 3 है। इफ यू टॉकिंग अबाउट 3a, इसके भी दोनों तरफ पड़ोसी है, एक तरफ a है और एक तरफ 5a है। बट फॉर एग्जांपल मैं 8 टरी पैम की बात करूं, 7 है। 8 टरी पैम की बात करूं तो ये a है, 3a है, 5 है, 7 है। 5a के भी दोनों तरफ पड़ोसी हैं, 5a के इधर है 3 है और इधर है 7 है, लेकिन एक है 7a वाला पॉइंट, ठीक है। 7a वाले पॉइंट के केवल एक तरफ पड़ोसी है, वो है 5a, राइट। उसके इस तरफ कुछ नहीं है। तो मेरे पास जो दो केस बनेंगे एमरी पैम के एनालिसिस करने के लिए, वो होंगे केस नंबर 1 जिनके दोनों तरफ नेबर हैं, और केस नंबर 2 वो पॉइंट्स जिनके केवल एक तरफ नेबर है, या जिसको हम एंड पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट्स। सो केस 1 में स्टडी होगी, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, इसको सभी लिख लेंगे बेटा। We will analyze
probability of error of PAM in two cases. Case 1, Case 1 is for internal points. And case 2 is for exterior points. Right? तो दो केस होंगे मेरे पास, एक होगा इंटरनल पॉइंट्स का और एक होगा एक्सटीरियर पॉइंट्स का. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल पॉइंट्स? इंटरनल पॉइंट्स मींस वो पॉइंट, वो कॉन्स्टलेशन पॉइंट जिनके दोनों तरफ नेबर है. और केस 2 में होगा एक्सटीरियर पॉइंट्स जिनके केवल एक तरफ नेबर होगा और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं होगा. एंड पॉइंट्स इनको लोग बोलेंगे. एक्सटीरियर पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स. ठीक है. सो आज तो हमने एक पॉइंट समझा विच इज कॉल्ड नियरेस्ट नेबर डिसीजन रूल. केवल इतना देखा है. कल हम लोग क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि अगर RT 0 से 2A के बीच में आया तो डिटेक्टेड बिट A होनी चाहिए, तब तो सब कुछ ठीक है. बट अगर RT 0 से 2A के बीच में है और डिटेक्टेड बिट A नहीं हुई तो क्या होगी? एरर होगी. राइट. सो हम लोग कल एरर पर बात करेंगे. आज हमने एरर पर कोई बात नहीं की है. आज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म फाउंडेशन तैयार कर लिया पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के एरर कैलकुलेशन का. और ये देख लिया कि कितने केसेस में स्टडी करेंगे. एक केस होगा इंटरनल पॉइंट्स का और एक केस होगा एंड पॉइंट का. फिर दोनों को बाद में क्या कर लेंगे? ज्वाइंट कर लेंगे. कैसे करेंगे वो हम लोग कल देखेंगे. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. आई होप यू गॉट द मेन थीम और मेन कॉन्सेप्ट. सर ये आपने लाइन लिखवाई थी ना, इन PAM रिसीवर टू मैक्सिमाइज द SNR वी यूज मैच फिल्टर रिसीवर. सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अभी होल्ड कर लो. मैं जब आपको दो टाइप के रिसीवर पढ़ाऊंगा, एक होगा कोरिलेशन रिसीवर और एक होगा मैच्ड फिल्टर रिसीवर. ठीक है. मैच्ड फिल्टर रिसीवर का जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपके